once said, gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance. Good afternoon, honorable guest of the day and trainer for today's session, Mr. Salman and Ms. Roma Yadav. Mr. Salman works with Breakthrough as a volunteer, speaker in the panel Youth Activism Accelerator 2021, organized by UN Women. I welcome our director, sir, Professor Ravi Kumar Gupta in absentia, dignitaries, learned delegates, respected teachers and students present here. I, Janvi, and I, Dipali Chalna, welcome you all on behalf of Gender Sensitization and Equality Initiative Club under the aegis of IQAC. The Gender Sensitization and Equality Initiative Club was formed in 2020 with an insight to sensitize the society and for gender equality and to be in touch with changing ground reality. It is an initiative under the Ministry of Women and Child Development, Government of India. It aims to implement various programs, schemes and legislations to address various forms of gender discrimination. We welcome all our student friends who have shown their willingness to be the part of this change that we intend to effect by being its members. We are glad to collaborate with Breakthrough India. Breakthrough India is an organization with a mission to make violence and discrimination against women and girls unacceptable by building a generation of gender-sensitive adolescents and young adults. Breakthrough Bystander Intervention Program, Stand Up Against Street Harassment. This program is designed to encourage the people to break the silence and intervene in sexual harassment to create a world wherein every individual lives with equality and justice. I request Ms. Nirati Gupta, Associate Professor MEMS, to facilitate our today's trainer for the session, Mr. Salman. Please give a huge round of applause. Now I request Ms. Sarita Gan, Associate Professor MEMS, to welcome and facilitate Ms. Roma Yadav. Please give a huge round of applause. Now, to begin with the training session, I would like to invite Mr. Salman and Ms. Roma, our trainer for today's session. We welcome you, ma'am and sir. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Salman. I have already introduced you. She is. Please silence, Roma Yadav. maintain silence, please, students. And today we are going to talk about street harassment. And I would like to start and पूछना चाहूँगा आपसे कि इस सेशन को लेकर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन या कुछ भी ऐसा कुछ दिमाग में या मन में कुछ भी आ रहा है कुछ इस तरीके का जो आप यहाँ पर अभी शेयर कर सकें. किसे सीखना था सेल्फ डिफेंस बताओ. There were some students who wanted to learn self defense. कि हमें सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे. It's okay. No. Okay. Yeah. That's enough merriment. But जो भी आपको लगता है आपको क्या लगा यहाँ अटेंड करने के लिए आ रहे थे तो क्या सोचा? आप बनाया गया था पूरे कॉलेज के लिए. जो पोस्टर देखा तब कुछ दिमाग क्या लगा क्यों आ रहे हैं? कुछ भी आप शेयर कर सकें. कुछ था बच्चों माइंड में? हम में से लोग फेस करते हैं स्ट्रीट पर हैरेसमेंट नहीं करते हैं, ऐसा कुछ माइंड में आया कि कुछ हमारे लिए रेलेवेंस है, कुछ हम यहाँ से शायद सीख सकते हैं, शायद कॉमन एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं.
ऐसा आया कुछ दिमाग में? मे बी आई एम नॉट अलोन एंड इट हैपेंस टू मेनी पीपल. It happens to girls as well as boys. While traveling in a bus, while traveling in metro, we come across, each one of us, come across, EV teasing, sexual discrimination, sexual harassment at the public place. It's very common. It's not only you and me. It's happening across the globe, So that is why this is the object of this training session, to sensitize you about the various facets of sexual discrimination which happens with men and women in our society. Anyways, please go ahead. Let's start. If you don't have any expectation, don't worry. We will try to do our best. And we are going to talk street harassment, as I earlier mentioned. So street harassment के बारे में हम बात करेंगे. Street harassment using a word. It's like public places पर जब भी किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट भी अलग अलग तरीके से हम फेस करते हैं. मे भी पॉसिबल है कि शायद हम में से कुछ ने ना फेस करा हो, और शायद पॉसिबल है कि हम में से बहुतों ने फेस भी करा हो, और हो सकता है किसी ने शुरुआत में अर्ली एज में फेस करा है, किसी ने अभी भी फेस कर रास्ते से आ रहे थे मेट्रो से या बस से, वहाँ पर फेस कर लिया. तो इस तरह की चीज़ें हम ये रोज़ फेस करते हैं. So this is the data we have, that what percentage of women wish someone help them when they were street harassed. कि कितने प्रतिशत महिलाएं या वुमेन पॉसिबिलिटीज की कितनी प्रतिशत जो वुमेन्स हैं जब उनके साथ हैरेसमेंट होता है एंड दे आर लाइक कि कोई उनकी वहाँ पर आकर हेल्प करे, दे आर समवन हु इज सपोर्ट देम. ऑलराइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्चुअल डाटा वी हैव, सो ओनली 25% वुमेन से समवन हेल्प देम, while 79% वुमेन विश समवन हेल्प, कि कोई उनकी वहाँ पर हेल्प करता. सो वी कैन क्लियरली सी द गैप कि 80% ऑलमोस्ट वहाँ पर विश कर रहे हैं कि कोई उनकी वहाँ पर आकर हेल्प करे. हेल्प इन द सेंस किसी भी तरीके की हेल्प वहाँ पर हो सकती है. एंड वाइल 25% सेइंग दैट दे वर हेल्प, कि उनकी वहाँ पर मदद की गई. सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, वी विल ट्राई टू ब्रिज दिस गैप. ऑलराइट, गैप को ब्रिज करने की कोशिश करेंगे हम लोग. एंड क्या क्या तरीके हो सकते हैं हमें इस ब्रिज को गैप करने के, वो हम आज थोड़ा सा सीखेंगे. ऑलराइट, तो एज आई अर्लियर मेंशन कि ये जो मिशन है हमारा इस ट्रेनिंग का और इस सेशन का, टू वॉक आउट ऑफ फेयर, रेडी टू सेफली रिस्पॉन्ड व्हेन वी सी स्ट्रीट हैरेसमेंट और व्हेन वी एक्सपीरियंस इट आवरसेल्फ. तो ये दो चीज़ें आज हम पूरे सेशन में देखेंगे, और क्या क्या हमारे सेशन में रहेगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं. 4 पार्ट्स में सेशन को डिवाइड कर सकते हैं हम. ठीक है, पहले में हम बात करेंगे कि अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है सेक्सुअल हैरेसमेंट और स्ट्रीट हैरेसमेंट को लेकर, कि क्या क्या एग्जांपल सेक्सुअल हैरेसमेंट के हो सकते हैं, क्या एक इम्पैक्ट कहें क्या हो सकते हैं एक इंडिविजुअल लाइफ पर अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेकेंडली वी विल लर्न कि जब एक हम विटनेस कर रहे हैं किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट को पब्लिक प्लेसेस पर, तब हम उसमें कैसे इंटरवेन कर सकते हैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए. वो हम बात करेंगे. थर्डली वी विल रिस्पॉन्ड और वी विल लर्न कि कैसे जब हमारे साथ हैरेसमेंट हो तब हम उसे कैसे टैकल करें, किस तरीके की हमारे वहाँ पर एक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए उसके लिए. एंड फोर्थ वी हैव अ प्रैक्टिसिंग पार्ट, जिसमें हम कुछ एक वीडियो देखेंगे एंड वी हैव सम सिनेरियोज, कुछ एक सिनेरियोज भी होंगे जिसमें हम अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. कि जो लास्ट वाला जो सेशन रहेगा हमारा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप उस सेशन में अपने आप को सिचुएशन में, सिनेरियो में अपने आप को इमेजिन नहीं कर पाओगे, सो आई वुड से कि शायद ये जो पूरा सेशन रहेगा कामयाब सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट कुछ एक बातें हम और डिस्कस कर लेते हैं. सेशन हमारा वायलेंस को लेकर है, हैरेसमेंट को लेकर है. मे भी पॉसिबल है कि मैं कुछ यहाँ पर वीडियोस दिखाऊँ या अपनी कुछ बातें यहाँ पर शेयर करूँ. सो शायद हो सकता है आप लोग उस चीज़ से ट्रिगर हो जाओ, आपको कुछ अपनी पुरानी बातें वहाँ पर याद आ जाए. मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल रहें वहाँ पर एंड पानी पिएं एंड रिलैक्स. सेकेंडली ट्रेनिंग इंटरेक्टिव रहेगी. इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क.
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है थ्रू आउट द ट्रेनिंग आप उसे पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, विदाउट हेजिटेशन यू कैन. And my name is Salman and I am working with Breakthrough as a volunteer and a trainer. और पिछले 8 महीने से I am working with Breakthrough, और पिछले 8 महीनों में लगभग मैंने ऑलमोस्ट 20 कॉलेजेस के साथ सेशंस किए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इसके अलावा कुछ एक NGOs और कम्युनिटी में भी जाकर मैंने सेशन किए हैं. और सेशन में मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है हर सेशन को लेकर. और जब मैंने ट्रेनिंग शुरुआत करी, जब एज ए ट्रेनर मैं आया ब्रेकथ्रू में, तो शायद मेरे पास अपनी हैरेसमेंट की स्टोरीज नहीं थी कि मेरे साथ भी कभी हैरेसमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. बट जब शुरू हुई ये सारी चीज़ें, मैंने सेशन लेना शुरू करा, तो दूसरों के जो एक्सपीरियंस थे, जो दूसरे पार्टिसिपेंट जब अपनी कोई स्टोरी शेयर करते थे, देन आई रियलाइज कि यार मेरे साथ भी ये हुआ था. एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ मेरे साथ मैंने ये फेस किया है. तो इसी तरीके की चीज़ें मुझे अलग अलग स्टोरीज मेरे दिमाग में फिर भी आने लगी. और अगर मैं बात करूं अपनी हैरेसमेंट स्टोरीज की, वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं, बट रिसेंटली अगर मैं बात करूं 2017 में आई वॉज इन 3rd ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ बैचलर में, और हमारे एक फुटबॉल मैच था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ, विच इज़ अ वेल नोन कॉलेज. सो वहाँ से हम अपने कॉलेज की तरफ से, वहाँ पर उनका स्पोर्ट्स फेस्ट था, तो वहाँ पर फुटबॉल मैच खेलने गए. तो वाइल प्रैक्टिसिंग बिफोर मैच वहाँ पर जो हमारा बॉल था हमारे कोर्ट यार्ड से बाहर चला गया खेलते खेलते, प्रैक्टिस करते करते. और जब मैं उस बॉल को लेने वहाँ गया तो देयर वाज अ बंच ऑफ स्टूडेंट हु वाज स्टार्टेड बुलिंग मी, और उन्होंने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया. और जो उनके वर्ड थे एग्जैक्टली अभी भी मुझे वो याद है. व्हाट वाज दे सेइंग, क्या वो मुझे कह रहे थे. दे वर लाइक के मीठा लग रहा है, बहुत चिकना है, कितने रुपए लेता है एक रात के. दे वर, ये उनके वर्ड थे. At that moment I was totally freeze. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं वहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन वहाँ पर दूँ, या मेरा क्या वहाँ पर एक्शन होना चाहिए. मेरी नज़र नीचे थी और मेरे आंखों में आंसू थे उस वक्त. एक फीलिंग आती है ना कि जब हमें नहीं पता होता कि क्या एक सिचुएशन में मैं करूँ, फ्रीज हम बिल्कुल हो जाते हैं, गला एकदम भरा था हमारा. तो वो सिचुएशन मेरे साथ थी उस वक्त. बट मुझे नहीं समझ आ रहा, उन्होंने 2-4 मिनट वो करते रहे, बोलते रहे. बट देन आई इनिशियली मैंने वहाँ पर एक्शन लिया. एक्शन मेरा क्या था कि सिर्फ मैंने वहाँ से बॉल उठाया और मैं वापस अपनी टीम के पास गया. मैंने वो मैच भी नहीं खेला उस सिचुएशन की वजह से. जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैंने वहाँ पर अपना मैच भी नहीं खेला. और उसके बाद कई हफ्तों तक मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि वो जो एक सिचुएशन थी, जो एक मेरे साथ हुआ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी. उसके इम्पैक्ट मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े. कहूँ तो मैं एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन अब वो मेरे साथ रही कि क्या मैं उस सिचुएशन में कर पाया, क्या मैं नहीं कर पाया उस सिचुएशन में. इसके बाद डिप्रेशन में मैं कई हफ्तों तक रहा. कॉलेज मैंने ज़्यादा जाना बंद कर दिया, कभी कभार चला गया हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार, बस इससे ज़्यादा. तो जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर रहे उस सिचुएशन के, वो बहुत ज़्यादा रहे. बट समहाउ आई मैनेज एंड आई कोप विद इट. उसके साथ कोप भी मैंने किया. एंड आफ्टर दैट मैंने कई NGOs के साथ फिर वॉलंटियर करना शुरू करा. बिकॉज देन आई रियलाइज कि अगर मैं इस चीज़ को रियलाइज अभी कर रहा हूँ एट द एज ऑफ 21, मैं इस चीज़ को अभी रियलाइज कर रहा हूँ, तो शायद मैं रोज़ आते जाते किसी न किसी को मैं देख ही लेता हूँ, मेट्रो में या बस में या फिर बस स्टैंड पर मैं किसी न किसी को देख ही लेता हूँ जो हैरेसमेंट होता रहता है. मैं देखता हूँ किसी को, और रोज़, लगभग रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के मैं रोज़ देखता हूँ कि कोई किसी को परेशान कर रहा है किसी ना किसी तरीके से. सो देन आई रियलाइज एंड आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद मैनी NGOs. बहुत सारे NGOs का मैंने वॉलंटियर करा. देन मैंने कुछ इंटर्नशिप भी करी NGOs के साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे. एंड थ्रू आउट दैट बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस वहाँ पर रहे. अलग अलग चीज़ें मुझे वहाँ पर जाके पता चली, क्या चीज़ें रही, क्या नहीं रहा. उस चीज़ को लेकर मेरे एक्सपीरियंस रहे. एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. So let's move forward. As I earlier mentioned, कि Breakthrough is working over 20 years. 20 सालों से ज़्यादा Breakthrough काम कर रहा है. और Breakthrough काम कर रहा है to making violence and discrimination against women unacceptable. और Breakthrough अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मुद्दों को लेकर काम कर रहा है. दिल्ली में अगर हम बात करें तो हम डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर हम काम कर रहे हैं. हरियाणा में हम बात करें तो गर्ल
चाइल्ड अबॉर्शन को लेकर हम काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर काम कर रहे हैं, बिहार और झारखंड में हम काम कर रहे हैं अर्ली चाइल्ड मैरिज को लेकर। और जो ब्रेक थ्रू के 2 वेल नोन कैंपेन है, रिंग रिंग बैल बजाओ कैंपेन एंड सेकंड वन इज दखल दो। और अगर आप YouTube पर इन दोनों कैंपेन्स को सर्च करेंगे तो यू विल इजीली गेट द वीडियो देज टू कैंपेन। ऑलराइट, होला बैग। तो पहली स्लाइड पर हमने देखा था 2 नाम थे, लॉरियल एंड होला बैग। सो होला बैग इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई, रोमा की ट्रेनिंग हुई इस सेशन को डिलीवर करने के लिए। और होला बैग एक न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हमारी भी ट्रेनिंग हुई। And Holabek says we are building a world where we can all be who we are wherever we are. Holabek said that we all deserve our life with dignity, कि हम अपनी लाइफ में dignity और respect के साथ जी सकें. It doesn't matter who we are, either a man, woman, LGBTQ individuals, whoever we are. That is our identity. वो हमारी पहचान है. But हमारी कुछ पहचान है. It doesn't matter कि हम अपनी लाइफ को dignity और respect के साथ नहीं जी सकते. It really doesn't matter because that is my choice. वो मेरी चॉइस है कि मैं क्वेयर हूँ या फिर गे हूँ, वो मेरी चॉइस है। ऑलराइट, सो होला बैग सेइंग दैट हर कोई अपनी लाइफ को एक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ जीना डिजर्व करता है। और ये जो ऑरेंज डॉट्स हम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड मैप पर, तो दे आर इंडिकेटिंग दैट होला बैग इज वर्किंग विद ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लगभग होला बैग काम कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और इंडिया में ब्रेक थ्रू ने उनके साथ पार्टनरशिप किया है। और इसी के साथ जो हमारा सेशंस हम डिलीवर कर रहे हैं, अभी पिछले 6 महीने तक हम सिर्फ दिल्ली में डिलीवर कर रहे थे। नाउ वी आर मूविंग टू अदर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र और यूपी एंड हरियाणा, पंजाब, हम उनकी तरफ भी अब मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीट हैरेसमेंट? कोई भी अगर बता सकता है एग्जांपल्स क्या हैं हैरेसमेंट के? कुछ भी आपने अगर कभी देखा हो? Whistling, stalking, eve teasing, passing comments. Anyone else? Alright. So before moving forward, I would like to say something कि जब भी हम वर्ड को यूज करते हैं eve teasing, so what is the actual meaning of eve teasing? It's like छेड़खानी करना किसी के साथ। छेड़खानी किसी भी तरीके की हो सकती है, which is an appropriate word for sexual harassment. क्योंकि जब हम eve teasing वर्ड का यूज करते हैं, so harassment को हम उसी वक्त बहुत छोटा कर देते हैं। क्योंकि eve teasing अपने आप में जब कोई बच्चे को कोई फैमिली मेंबर जब खिला रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं, बच्चे को रहने दो, मत परेशान करो, छेड़ो मत। तो eve teasing is something like that, जिसमें जो मैं कर रहा हूँ, अगर किसी को टीज कर रहा हूँ, तो सामने वाला भी उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसे भी मज़ा आ रहा है और वो मजाक के वे में चल रहा है। बट सेक्सुअल हैरेसमेंट में जब हम बातें करते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रीट हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट। फर्स्ट वन इज कमेंट, सेकंड वन इज लीरिंग, थर्ड वन इज अनवांटेड टचिंग, सॉन्ग्स, किसिंग समवन, हगिंग, स्टॉकिंग और फॉलोइंग, showing pornography against one's will, flashing private parts, demanding sexual favors, options call and messages, vulgar gestures and whistling. So this one, options call and messages, ये हमने साउथ ईस्ट एशिया में थ्रू आउट लॉकडाउन और पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। किसी को ऑनलाइन स्टॉक करना, कॉल कर देना एनोनिमसली किसी को भी, एंड सेइंग टू देम के आपसे बात करनी थी एंड फ्रेंडशिप आपसे करनी है, इस तरीके की कॉल्स और मैसेजेस व्हाट्सएप पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेक्स्ट मैसेज, बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ें वहाँ पर देखी हैं। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ऑप्शंस कॉल एंड मैसेजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं थ्रू आउट लॉकडाउन, विच इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअल हैरेसमेंट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। Sir, are all these examples accepted legally? Yeah, they are legally accepted. And if I talk about legally, अगर मैं बात करूँ, so there are some section. Not an IPC में कोई डायरेक्ट सेक्शन नहीं है इसके लिए, सेक्शुअल हैरेसमेंट के लिए, बट एक कह सकते हैं कि है कुछ एक अंडरलाइन, कुछ IPC के सेक्शन के अंडरलाइन में कुछ एक सेक्शन ऐसे आते हैं
जहाँ पर ये सब भी एक गैर कानूनी माना Sorry to जाता है। interrupt. We have a separate legislation, Sexual Harassment at Workplace Act 2013 का law है हमारे पास. सो दैट इज़ फॉर योर वर्क प्लेस। बट अगर जैसे हम स्ट्रीट हैरेसमेंट की बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए बात करते हैं हम विस्लिंग की, ठीक है, तो इसको अगर हम लेकर आना चाहें आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वगैरह में, ठीक है, विस्लिंग नहीं आ पाएगा, इतनी ईजिली लियरिंग भी नहीं आ पाएगा, नॉट ऑल काइंड ऑफ कमेंट्स में इवन भी एंटरटेन, बिकॉज हम यहाँ पर पिनल प्रोविजन की बात करें और पनिशमेंट की बात करें कि उसके बेसिस पर एक पनिशमेंट होना है। सो बट देन येस, जैसे सोशल ये शोइंग पोर्नोग्राफी, flashing parts, demanding sexual favors, obscene calls, vulgar gestures, unwanted touching, hugging, kissing, stalking, comments, some kind of comments, not all comments. ये सब कुछ जो है outraging modesty of women के अंदर आ जाएगा। 354 होता है जहाँ पर stalking, voyeurism, ये चीज़ें आती हैं। Then आपका 500 एंड के टूवर्ड्स जाकर एक आता है, 507 और 509, वो उसके अंदर आ जाता है कि outraging modesty of women। तो उसके अंदर बहुत सारी ये चीजें आ जाएंगी। And also songs भी आता है उसमें। Section 294 में जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस एक्ट, सॉन्ग्स और वर्ड अटर्ड इन अ पब्लिक स्पेस, कोई भी ऐसा वर्ड अगर हम अटर कर रहे हैं पब्लिक स्पेस में which is making a person uncomfortable, that is also falls in the category of sexual harassment. And apart from, as ma'am said, section 354A, B, C and D and 509, these are the legal acts in IPC में, जहाँ पर अलग अलग किसी में 6 महीने का इम्प्रिजमेंट है और कुछ फाइन है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज इन सब में आती है। So let's move forward, and there is a question for you guys, that have you ever faced any harassment? आप में से किसी ने कभी भी कोई harassment को face किया है? Yes. Flashing private parts. Flashing private parts. So can you please, अगर if you are comfortable to Yeah. I was moving back to home from market and I was traveling, like I was on my phone usually. So I was just walking and I saw a guy who was sitting on the bike and it was showing, the part was showing. And he was shouting that the word I can't say, that can you come, the English I'm explaining. So I got frozen, like I thought ki kya ho raha hai? I couldn't, process the whole thing. So I just kept moving and I saw that there's a guard also, guard room is also there. So I thought if he follows me, I'm going to like take the danda and all and hit him. But eventually, thankfully, he didn't follow me and he went. But I was in a shock for like a week. Yeah. But the sharing part, like I shared this thing with my friends because parents, they become, ki baar na jaan. I got freaked out. This happened when I was in 10th standard, like 2-3 years back. All right. Yeah. So there was one, and any one of you, there are a list of examples of harassment. आप में से किसी ने भी ये जो 8 हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन को, कभी भी फील किया है harassment को? अगर हम बात करें कौन सा एक स्टैरिंग है, whistling, all of them, all of them. all of them. Yeah, All because the all the girls are not opening up. We will- Yeah. Maybe because of you are not opening up. And one thing I would I like should to, ask specifically the boys. हाँ. In fact, girls के लिए तो common है. But if boys, if they feel, I mean, अगर आपका मन हो किसी का शेयर करने का, अगर किसी के साथ कुछ भी इनमें से हुआ हो, स्टेयरिंग तो हो ही सकता है, अगर हुआ हो तो and आपका मन हो शेयर करने का, then I hope one of you would take up the time and Staring is one of the most common that Yeah. is happening in It every happens with everyone. with everyone. Yeah. ये कोई इसमें एज नहीं है, ये मेरी एज में भी हो सकता है, आपकी मम्मी की एज में भी हो सकता है, किसी की एज में भी हो सकता है. remember one thing, ये जो हम रूम में जितनी भी बातें हम कर रहे Please, हैं, no, maintain आपस में silence. थोड़ी अगर डिस्कस कोई करना है, भी हमें अपनी- बताओ ना, कोई हमें भी बताओ. अपनी यहाँ पर प्राइवेट बात अगर कोई भी यहाँ पर शेयर कर रहा है, so I would like to say कि हम उसे यहीं पर छोड़कर जाएंगे, उसके बारे में बाहर जाकर गॉसिप नहीं करेंगे कि वो ऐसा बता रही थी या वो लड़का ऐसा बता रहा था. हम यहाँ पर एक सेफ स्पेस देने की भी कोशिश करें थ्रू आउट दिस सेशन. ऑलराइट, सो ऐसा ना हो कि कोई अपनी यहाँ पर चीज़ शेयर करे और बाहर जाकर उसके बाद में गॉसिप हो, अलग अलग बातें हो उसके बाद में, वो भी हम नहीं करेंगे. अगर कोई कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है, सो वी लीव इट इन दिस रूम ओनली, यहीं पर वो बात खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो कुछ आप हैं यहाँ पर, किसी ने कुछ फील करा है, अगर सब भी किसी ने फील करा है तो अपने हैंड रेस कर दीजिए.
बट किसी ने इनमें से कुछ भी फील करा है या फेस किया है? Nobody will judge, please guys. Yeah, it's a very safe space and the idea of sharing is this कि हम सबके साथ ये चीज़ होती है। जब हम शेयर नहीं करेंगे, हम ये रियलाइज नहीं करते कि हम सबके साथ होता है। जब हम बात करने लगते हैं इसके बारे में, तब हमें लगता है देखो हमारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, कुछ आपके साथ अलग गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फील करो कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं नहीं बता सकता। मेरे साथ 3 बार हुआ है, 3 बार मेरे साथ हुआ है कि किसी ने मुझे कभी सोते में, अगर बस में हूँ तो बस में मुझे ग्रैब करने की कोशिश करी, मेरे साथ हुआ है। तो ग्रैबिंग का अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, ग्रैबिंग की आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड में मैं था 2014 में। No, maintain silence class. जब मैं छुट्टियाँ की समर वेकेशन थी हमारे 12th के बोर्ड देने के बाद मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पर अपने मेरे जो कोलीग तो नहीं, कजिन थे मेरे, तो मैं सो रहा था सुबह के 4 बजे, तो मैं सो रहा था, तो मेरे कोलीग था, कजिन था मेरा, तो वो मेरे ऊपर आकर ले गया एंड ही स्टार्टेड किसिंग मी, तो मुझे किस करना स्टार्ट कर दिया एंड ही वाज आल्सो रबिंग हिज प्राइवेट पार्ट, वो अपना प्राइवेट पार्ट भी मेरे से रब कर रहा था। बट व्हेन आई रियलाइज, और जब मेरी आँख खुली तो मैंने सिर्फ उसे धक्का दिया पीछे, और उसके बाद अभी तक भी ये बात मैंने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताई कि उसने मेरे साथ इस तरीके की चीज़ करी। बट नाउ आई एम इस तरह की सेशन जब मैं करता हूँ और ये सारी चीज़ें जब मैं शेयर करता हूँ, तो शायद मेरे लिए पहले ये चीज़ें पॉसिबल नहीं था कि मैं सारी ये चीज़ें, ये स्टोरीज अपनी एक ऐसे सेमिनार हॉल में शेयर कर सकूँ या फिर किसी पब्लिक प्लेस में अपनी स्टोरीज को वहाँ पर शेयर कर सकूँ। मेरे अंदर भी इतना करेज नहीं था, क्योंकि समवेयर मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब मैं ये चीज़ें शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रामेटिक हैं, ट्रामेटिक सिचुएशन थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो हम वैसे मान लेते हैं किसी न किसी ने ये फेस किया है इन सब में। So I would like to share. I was in 4th standard. मैं अपने स्कूल का नाम भी लूँगी. I was in my school and हम स्कूल बस से ट्रैवल करते थे. तो हम स्कूल में थे और कंडक्टर was drunk और वो वहाँ पे नहीं चढ़ा because school was knowing this thing. अगर वो स्कूल में चढ़ा, स्कूल के अंदर चढ़ा, तो there will be chaos. वो आगे जाके एक मॉल था वहाँ पे चढ़ा and जो बड़े बच्चे थे 12th क्लास में सीनियर्स, they knew he was drunk. तो उन्होंने कहा कि भैया आप लास्ट सीट पे जाओ, तो उन्होंने हम सबको आगे शिफ्ट करा, हमारे जो 12th क्लास के भैया थे हम सबको आगे बिठाया लड़कियों को, और खुद वो जो कंडक्टर था वो पीछे लेट गया. When there was my stop, जब मैं मतलब मेरा स्टॉप 5-10 मिनट की दूरी पे था, हम 2 फ्रेंड्स इकट्ठे उतरते थे, तो उसने हमारे कंधे को टच करा. मैं एकदम फ्रीक आउट, मैं रोने लग गई. मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मैं रोने लग गई. तो वो जो 12th क्लास के भैया थे, ही वॉज माई कजिन्स फ्रेंड, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं उतरेगी तब तक मैं नहीं उतरूँगा. तो उन्होंने मुझे अपने स्टॉप पे उतारा. मैंने घर पे बताया ही नहीं, ना मेरी मम्मा को ना मेरे पापा को. मैंने किसी को कुछ नहीं बताया. मेरी जो फ्रेंड के साथ भी सेम चीज़ हुई, उसके कंधों पे भी हाथ लगा था. उसने अपनी मम्मा को बताया और उन्होंने रात को मेरी मम्मा को कॉल करके बताई कि ये चीज़ हुई. उसके मम्मी पापा ने एक्शन नहीं लिया. मेरे मम्मी पापा दोनों अगले दिन स्कूल गए, पुलिस ने कंप्लेंट करी, स्कूल के डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम से बात करी. उन्होंने अगले ही दिन उस कंडक्टर को, उस बस को हटा दिया. सेकेंड थिंग, उन लोगों ने मुझको काउंसलिंग कराई कि आई शुड बी ओके बाय दैट टाइम, एंड आई थैंक्स टू माई प्रिंसिपल मैम एंड डायरेक्टर्स फॉर डूइंग दैट थिंग एट दैट एज. Because traveling every day to metro and going through places alone without your family and without anybody, that's the thing I can do today. Yeah, exactly. That is very good also कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर encourage हुए आप, कि जब वहाँ पर आपको काउंसलिंग मिली और बाकी लोगों ने भी आपको सपोर्ट करा. So what happened कि आपके ऊपर जो impact है sexual harassment के, वो उतने ज़्यादा नहीं हुए. बट होता क्या है, और यही हम कर भी रहे सेशन में, कि जब हमारे साथ कोई हमारी हेल्प नहीं करता, कोई हमारी बैक नहीं लेता पीछे से, तब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें कहाँ पे आकर रुकेंगी मेरे साथ. दिस इज व्हाट हैपेंड. सो लेट्स मूव आगे. सो देयर इज अ वीडियो, एक वीडियो है, वीडियो हम लोग देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी कि क्या क्या वहाँ पर वीडियो में है और कैसे लोग वहाँ पर
इंटरवेन करने की कोशिश भी करें। बस इतना बहुत है। वॉल्यूम अच्छा हमारे पास साउंड नहीं है ना? No worries, just sing. Video was self-explanatory था वीडियो I would say, and anyone कोई भी बता सके कि क्या वीडियो में था एक बार so that yeah. That whenever you see something that somebody is trying to harass somebody, you should stand up for them. You should just try to support them instead of just being a person who is actually watching them, mute spectator. Yeah. And we are using a word bystander exactly. Some action. Yeah. So we are using a word bystander for them who are just watching and they are not action लेने के उनके अंदर शियापू करे नहीं है and they are just waiting for others कि कोई और वहाँ पर action ले. So this is the thing. और वीडियो में हमने ये भी देखा कि कई अलग-अलग तरीके से लोगों ने वहाँ पर इंटरवेन करने की कोशिश की. तो लोगों के बीच में आकर खड़े हो गए या फिर कहीं पर डिस्टर्बेंस कुछ चल रहा है वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कुछ कर दिया. स्टॉकिंग अगर कोई कर रहा है तो जो बंदा स्टॉक कर रहा है उससे कुछ भी एड्रेस पूछ लिया. अलग अलग तरीके हमारे पास रहेंगे. शुरुआत में मैंने कहा था कि वी विल प्रायोरिटाइज आवर सेफ्टी फर्स्ट, कि हम अपनी सेफ्टी को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, देन वी विल इंटरवेन. तब उसके बाद में हम इंटरवेन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम इंटरवेन करने जाएं और हमारी सेफ्टी हमारे ऊपर ही वो चीजें सारी आ जाए. सो let's talk about the impacts of street harassment. What are the impacts of street harassment? क्या anyone tell? कि क्या कुछ impacts होते हैं sexual harassment? Inbuilt fear. Inbuilt fear. Insecurity. ब्रदर्स आपकी Insecurity सिस्टर्स is ने भी तो about बताया what? होगा, आपकी सिस्टर ने भी आपको कभी कोई इंसिडेंट बताए होंगे ना, कुछ आपने उनसे सुना हो, डर जाते थे, आपको कहने लगे आप मेरे साथ चलो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, या आपके अंदर ही एक इनसिक्योरिटी आई फैमिली के अंदर कि नहीं हम, जैसे आपकी फ्रेंड ने भी बताया अभी कि भाई मैं पेरेंट्स को नहीं बता पाई बिकॉज वो मुझे ऐसे कहने लगते कि नहीं तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे आपसे. तो आप लोगों ने भी किया होगा बहन को, चल मैं लेके चलता हूँ. आई रिमेंबर एक बार मुझे कॉल्स आने लग गए, घर पर ही थे हम, तो मेरे भाई ने क्या किया ना, हमें रूम से बाहर निकाल दिया, मुझे और मदर को रूम से बाहर निकाला, अपने एक दोस्त को बुलाया एंड बहुत वो बार बार स्पैम कॉल्स आ रहे थे, बार बार. उसको पता नहीं, वो देमसेल्व्स यंग 8-9 स्टैंडर्ड के होंगे, नई गालियाँ सीखी थी, वो अपने दोस्त को उसने बुलाया और इतनी गालियाँ दी, उसके बाद वो कॉल्स आने बंद हो गए. सो दिस इज समथिंग जो लाइक आई सेड, अच्छा चलो आपने पर्सनली आप लोगों ने आई होप नहीं एक्सपीरियंस किया होगा ये, बट विद योर सिस्टर्स यू हैव सीन इट एंड यू मस्ट हैव टेकन सम स्टेप्स, और उनकी भी आपने स्टेट देखी होगी. थोड़ा ओपन अप करने की कोशिश, थोड़ा बताओ अगर किसी के साथ कुछ हुआ तो. मैम कुछ एक सेम सिनेरियो था अभी मेरे साथ, ये रिसेंटली अभी 10 to 15 डेज पुराना ही केस है. इसमें मेरा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज है मेरे से, तो मैम उसकी बड़ी सिस्टर है, तो उसको एक अननोन नंबर से उसको पहले मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, एंड उसके बाद फिर वो मैम अपने प्राइवेट पार्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स वो भेजने लग जाता है. या तो मैम वो फ्रेंड उस टाइम पे मैं शिफ्टिंग कर रहा था अपने घर की, तो आई वाज आल्सो हेल्पिंग हिम. सो मेरे को जैसे ही पता पड़ा और मेरे फ्रेंड को, अब वो उसका भाई, एकदम से वो पैनिक सिचुएशन थोड़ी हो जाती है. तो मैम हम दोनों ने स्टैंड लिया, मैं बहन ही मानता हूँ दीदी, तो हम दोनों ने ना दीदी को बाहर भेज दिया, बोला कि अब
जाओ थोड़ा चिल आउट करके आओ, और मैम इतने फिर हमने अंदर काम नहीं होता था। बोलो बेटा प्लीज, यू वर सेइंग। मैम इम्पैक्ट का बता रहा था कि जैसे अगर कोई फेस करता है तो सपोज वो एक्सट्रोवर्ट था पहले, ये फेस करने के बाद कई लोग हो जाते हैं जो शायद थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो एक इम्पैक्ट बोल रहा है। So let's move forward and discuss the impact of street harassment. Psychological or mental health, if we talk about that, there are anxiety, depression and PTSD, post-traumatic stress disorder. These are three things जब हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट में, और तीनों चीज़ों में लाइक आई वाज सेइंग, जैसे मैंने बताया था कि मुझे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया, लगभग ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्ते मैं डिप्रेशन में गया। मुझे घर से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं होता था उस वक्त जब मेरे साथ हुआ, और बहुत ज़्यादा एनेस्थीसियस मैं रहता था अपने आप में, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या मैं करूँ या किसी के साथ अपनी चीज़ें भी शेयर करूँ। और उसके बाद भी कई सारी चीज़ें मुझे रिपीट होती रहती थी। मुझे लगता था कि कोई अभी भी मेरे साथ सेम चीज़ें बोल रहा है, अभी भी सेम चीज़ें, वो लड़के मेरे साथ एक बंच खड़ा है अभी मेरे सामने और दे आर स्टिल बुलिंग, और अभी भी वो मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। सो दीज आर 3 थिंग्स। एंड सोशल एंड फाइनेंशियल इफ वी टॉक अबाउट लिमिटेड मोबिलिटी द फर्स्ट थिंग, और ये सबसे ज़्यादा होता है कि जब हम मेरे साथ कुछ हुआ, सपोज टू बी शायद मैं लड़का था, और अगर मैं उस वक्त पे ये सब चीज़ें शेयर भी करता अपने घर फैमिली के साथ, तो शायद वो मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं करते मेरे होम में, क्योंकि मैं बॉय हूँ, मुझे नहीं करते। बट सेम चीज़ अगर किसी लड़की के साथ होती है, उसने वो चीज़ें अपने फैमिली में शेयर करी, तो व्हाट हैपन फर्स्ट, पहले क्या होता है, एग्जैक्टली मोर प्रोटेक्टिव, एंड व्हाट दे डू फॉर इट कि वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, या फिर स्कूल या कॉलेज अगर जा रहे हैं तो भाई या पापा में से कोई स्कूल कॉलेज छोड़ने जाएगा और लेने भी आएगा, कोचिंग जा रहे हैं तो कोई साथ में जरूर जाएगा, बाहर अगर किराना की दुकान पर भी जा रहे हैं तभी भी कोई साथ में जाएगा, या फिर कोई और वहाँ से सामान लाकर तुम्हें देगा। Tracking devices also. Exactly. Live location. फोन पे या फाइंड माय फोन। So this is what happens. Limited mobility बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हम खुद से भी अपने आप से भी अपनी लिमिटिडिटी को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम खुद, क्योंकि हमें भी एक तरीके से फोबिया फिर होने लगता है पब्लिक स्पेसेस से, कि शायद मैं वहाँ जाऊँगा तो दोबारा से मेरे साथ वही चीज़ें हो रही हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड लिविंग जॉब्स, कि जब भी हमारे साथ वर्क प्लेस पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तब हमारे साथ क्या होता है कि हम वहाँ से जॉब सबसे पहले छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कोई हैरेसमेंट कर रहा होता है तो शायद वो कोई सीनियर पर्सन नहीं होता है, जब कोई हैरेसमेंट कर रहा होता है, सिचुएशन हमारे साथ चल रही होती है, तो व्हाट वी डू इज कि हम वहाँ से अपना जॉब को छोड़ देते हैं। एंड 2013 में एक एक्ट आया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, एग्जैक्टली। उसके बाद से फिर 2013 के बाद से फिर वो लॉ बन गया, एंड उसके बाद से कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में और वर्क प्लेस पर हर कहीं पर एक कमेटी बनाई गई, वुमेन डेवलपमेंट सेल, और कॉलेज में ICC, इंटरनल कमेटी, तो इस तरह की चीज़ें उसके बाद बनाई गई, जिससे सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है। आई वॉन्ट से कि चीज़ें बिल्कुल रुक गई हैं, अब नहीं होती, होती अभी भी हैं। पीपल आर स्टिल सफरिंग फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड इज कीपिंग स्कूल और मूविंग होम, व्हिच आई ऑलरेडी मेंशन, कि स्कूल और जाना है, कॉलेज जाना हम छोड़ के स्किप करना शुरू कर देते हैं। हफ्ते में एक दिन चले गए, कुछ इंपॉर्टेंट डे है तब चले गए, टेस्ट है तो चले गए, इस तरीके से हम अपना स्कूल और कॉलेज भी स्किप कर देते हैं। मूविंग होम, जब हमारे साथ हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जब हमारे साथ होती है, सपोज कि मैं अपने फ्लैट से निकला और निकलते ही चौराहे पर 4 लड़के खड़े 4 लड़कों ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं फिर वहाँ क्या करूँगा कि मैं अपने घर पर आकर बोलूँगा यार यहाँ से चलो, और ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे लड़के बहुत बदतमीज हैं और यहाँ से मूव करो, विच इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी और माई फैमिली। मेरी फैमिली के साथ शायद वो फाइनेंशियल बर्डन एक बढ़ेगा कि हमें अब होम को मूव करना, और एक जगह से दूसरी जगह घर को मूव करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अपने आप में, ढूंढना, वहाँ पर शिफ्ट करना, सामान रखना, सो विच इज़ ऑल्सो फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कम्युनिटी में हम बात करें, जब एक लड़की के साथ या मेरे साथ भी अगर होता है,
तो पहली चीज़ है क्या निकल कर आती है, स्टेटमेंट क्या होती है हमारी सोसाइटी की, कलेक्टिव जो होती है कि शायद जींस टॉप पहनती है उसके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ तो नहीं होता ऐसा, स्टेटमेंट निकल कर आती है। या फिर अकेले बाहर जाती है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है, छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट सोसाइटी से निकल कर आती है। डू यू गाइस थिंक के ये जो स्टेटमेंट मैंने 2-3 बोले ये रीजंस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के? No, sir. यार नो है ही नहीं कहीं पर। अगर ऐसा होता छोटे कपड़े जींस टॉप या अकेले चलने वाली लड़कियों के साथ ही हैरेसमेंट होता तो शायद बुर्खा पहनने वाली या साड़ी या सलवार सूट पहनने वाली किसी के साथ होता ही नहीं। एग्जैक्टली 6 months 19 years 90 साल 6 महीने कुछ बचा ही नहीं। Even dogs, The dog. they're not taking dogs. एग्जैक्टली सबके साथ है। कम्युनिटी में वापस आ जब बात करूं तो हम उसमें भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जब ऐसी स्टेटमेंट हम सुनते हैं ना हम उनके अगेंस्ट नहीं जाते, हम फिर अपने आप को चेंज करने लगते हैं उस स्टेटमेंट्स के जरिए से। किसी ने बोल दिया छोटे कपड़े पहन के, सो व्हाट वी डू, या तो फैमिली हमें प्रेशर करेगी या फिर खुद ही हम वो कपड़े पहनना छोड़ देंगे। शायद मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद हो और उसकी वजह से मैं मेकअप करना छोड़ दूँ क्योंकि शायद मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ एंड आई वाज थिंकिंग कि शायद मैंने यार मेकअप बहुत ज़्यादा कर रखा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं वो छोड़ सकता हूँ। What if it comes from your own family or relatives? It is happening. Like 97% of the cases came from close family members. It is happened because जब हम बात करें 2016 के 18 के एनसीआरबी कानून की अगर हम बात करें तो 100 में से 93% जो रेप केसेस थे वो फैमिली मेंबर्स या कोई नेबर ही था जिसने रेप करा। एंड अनदर फैक्ट इज दैट कि जब उनके साथ रेप हुआ दे वर ऑलरेडी फॉलोड, उनके साथ ऑलरेडी हैरेसमेंट किया जा रहा था, जिनके साथ जो टारगेट था उनके साथ ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा था, उन्हें हैरेस किया जा रहा था उन्हें, which is 65%। 93 में से नेबर्स और पड़ोसी या फिर रिलेटिव थे, उसमें से 65% ऐसे रेप केसेस थे जहां पर ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा था टारगेट। सो अगर हम दोबारा से मैं वही आ जाता हूँ, अगर हम स्ट्रीट हैरेसमेंट को रोक देंगे तो शायद मे बी पॉसिबल है जो 65% का जो एक नंबर है मे बी वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए। बिकॉज हम जब किसी को प्रिवेंट करते हैं ना किसी भी चीज से, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि हम उसे उसी सिचुएशन के लिए रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसे डिस्करेज भी कर रहे हैं उस चीज से, हम उसे डिस्करेज कर रहे हैं और इससे क्या होगा जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स हैं वो शायद वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है कि किसी भी चीज को जब रेप केस होता है तो हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं कि क्यों हो रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट हम क्या करते हैं उसके लिए, वो तो हो गया, उसके बाद हम सब कुछ ट्रेंड कर रहे हैं, कैपिटल पनिशमेंट मांग रहे हैं। बट जब सिचुएशन चल रही है हैरेसमेंट की तब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्वेश्चन इज दैट सिचुएशन हो गई, ठीक है, हम कर रहे हैं सब, उससे पहले हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? This is what we can do. We can stop or prevent street harassment or sexual harassment. It can be anywhere. हमारे घर में हो सकता है, गली मोहल्ले सोसाइटी में हो सकता है, ठीक है, कॉलेज से आ रहे हैं रोड पर हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, इवन कॉलेज में भी हो सकता है, कहीं भी हम जा रहे हैं वहाँ हो सकता है। So it can prevail anywhere. कहीं भी ये prevail कर सकता है। It doesn't matter कि सिर्फ काम की जगह पर है, कॉलेज में ही prevail करेगा। So these are the impacts of street harassment, and now let's move forward. Our inspiration. कि inspiration क्या रहा ब्रेक थ्रू का, लॉरियल पेरिस का या फिर भोला बैग का? So there was a tweet in 2018 Feb. Tweet was from Nicoletta का एक tweet था जहाँ पर वो एक जिम में थी and their boyfriend, उसका boyfriend उसे कुछ मजाक की उसमें teasing, हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं, तो उसे टीज करने की कोशिश कर रहा था। एंड ही वाज सेइंग टू हर कि यू आर लुकिंग नाइस इन दोज लेगिंग्स, कैन आई टेक यू आउट सम टाइम? सो दिस इज व्हाट द वर्ड निकोलेटा's बॉयफ्रेंड सेड टू हर,
and he was pretending that he was not her boyfriend. वो प्रिटेंड नहीं कर रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, प्रिटेंड ना करते हुए उसने वो चीज़ बोली। वहीं पर एक थर्ड लेडी थी जो उसने सिचुएशन देखी एंड शी डिसाइडेड टू इंटरवेन इन दैट सिचुएशन। उन्होंने वहाँ इंटरवेन करने की कोशिश की एंड व्हाट शी डिड देयर, he said, hey, you ready to leave? I informed her, then Nicoletta said, I informed her he was my BF, but girl, I appreciate you. And Nicoletta is still appreciating that girl. She was intervening. While there was not a situation of sexual harassment. Sexual harassment situation नहीं थी, वहाँ सिर्फ एक मजाक चल रहा था. But the lady have some कहीं उसने कहीं ना कहीं realize करा कि हाँ कुछ ऐसा है, and she intervened. And after that Nicoletta said, there is nothing like that, but girl I appreciate you. और उन्होंने इसे एक ट्वीट के जरिए अप्रिशिएट करा। ट्वीट पर बहुत ज़्यादा लाइक और बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा। ऑलमोस्ट नंबर यहाँ देख सकते हैं, 6 डिजिट में नंबर है लाइक्स और रीट्वीट। So this was the inspiration for Hollaback, L'Oreal Paris and Break. Bystander intervention are proven methodology. Bystander intervention, bystander वर्ड एक जब हम यूज करते हैं जब एक पूरी भीड़ में आप सब लोग बैठे हैं, कोई मेरा हैरेसमेंट कर रहा है, तो शायद आप में से किसी को करेज नहीं आएगा एंड यू ऑल विल थिंक कि शायद कोई और वहां पर आकर इंटरवेन करे, मैं क्यों करूं। ठीक है, तो बायस्टैंडर इंटरवेंशन ऑफ प्रूवन मेथोडोलॉजी। ऐसा नहीं है कि हम कोई यहाँ पर नई चीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हेल्प की, इंटरवेंशन की, तो हम बहुत एजेस से इसे देखते हुए आ रहे हैं। जब से एंशिएंट पीरियड में सोसाइटी फॉर्म हुई है, तब से मेडिवल पीरियड, मॉडर्न में, एंड नाउ वी आर लिविंग पोस्ट मॉडर्न, तो हम देखते हुए आ रहे हैं इस मेथोडोलॉजी में इंटरवेंशन की। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हमने कोविड में देखा अलग अलग तरीके से लोगों ने हेल्प करी है, आइदर इट इज अबाउट फूड इनसिक्योरिटी, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीटी मास्क और सैनिटाइजर, एनीथिंग एल्स, हमने वहाँ पर आगे आकर मदद करी है। ग्रुप कलेक्टिवली वहाँ पर मदद करी है, इंडिविजुअली हमने वहाँ पर हेल्प करी है लोगों की। बट क्या हमें हो जाता है जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट को देखते हैं, वहाँ पर अपना एक्शन कुछ नहीं ले पाते? क्या कुछ ऐसे रीजन आते हैं? ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल चीज है, प्रॉब्लम है, एंटी सोशल एलिमेंट है, रोकना तो इसे भी है, बट क्या हमें हो जाता है कि हम वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाते, कुछ अपना कुछ एक जो इंटरवेंशन है वहाँ नहीं कर पाते, उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द आइडियाज ऑफ 5 Ds कि कैसे हम इंटरवेन कर सकते हैं अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए। 5 Ds को एक बार देखेंगे ठीक से जल्दी जल्दी एंड देन वी विल लेटर एक्सप्लेन करेंगे सारे Ds को भी क्या है और कैसे इंटरवेन कर सकते हैं विद एग्जांपल ऑफ वीडियो। सो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्ट, second one is delegate, third one is document, fourth one is delay, and last one is direct. These are the 5 Ds. We are trying to and we are advocating for them कि जब भी आप कोई भी सिचुएशन सेक्सुअल हैरेसमेंट की देखते हैं, try these 5 Ds. It will improve the situation. And ये जो कैंपेन पूरा चल रहा है 2018 से चल रहा है, and there are significant mark of 80% लोगों ने ये कहा है कि हाँ जब हमने इनका यूज करा तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बेटर हुई। एंड 80% डाटा इज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम ओनली इन इंडिया। ठीक है, सो दीज आर द 5 Ds एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन रीजंस पीपल डोंट हेल्प। कॉमन रीजंस क्या है लोग वहाँ पर हेल्प नहीं करते हैं या फिर इतने ज़्यादा इंकरेज फील वहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, सो nobody else is doing anything. This kind of thinking is called the bystander effect. कि कोई भी कुछ नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं? और either we wait for someone कि कोई और वहाँ पर आकर intervene करे. And it allows the whole crowd to wait for someone else to act. It takes courage to be the first to do something. This is the bystander effect, and this is the most common reason we find. शायद मैं क्यों करूँ जब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सुनते ना उनके मैं क्यों दूसरे के पंगे में टांग रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखते हैं।
these are the most common reasons. Let's talk about the reasons. Yeah. So there are as many as 6 reasons that most commonly these are. So first one is I'm afraid I'll make things worse and I'm scared it will turn on me. तो शायद मैं अगर हेल्प करने गया तो चीजें मेरे ऊपर ही आएंगी। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसी थिंकिंग आए हमारे दिमाग में कि शायद यार मेरे साथ ही ऐसा होने वाला है या फिर मैं चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़, क्या हम उस सिचुएशन में कर सकते हैं? We will try to take a less direct action. कुछ भी हमारा ऐसा कुछ लेस डायरेक्ट एक्शन वहाँ पर हो सकता है तो सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हैरेसमेंट चल रहा है उसे रोक सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मे बी पॉसिबल है कि मेरे साथ कभी नहीं हुआ या रोमा के साथ कभी ना हुआ हो, मेरे किसी फैमिली मेंबर या कोई मेरा फ्रेंड रहा हो उसके साथ ये चीज़ें हुई हो। सो आई कांट से कि मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है और अनटिल और अनलेस हम इसमें कलेक्टिवली इंटरवेन नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। सो वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट एंड आई डोंट फुली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वहाँ हो क्या रहा है। In that situation, what we can do is we will try to ask someone else कि what is happening there. अगर कोई फ्रेंड है आपका उससे पूछने की कोशिश करें या फिर कोई और बायस्टैंडर वहाँ पर खड़ा है उससे पूछने की कोशिश करें कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है वहाँ पर, it is something, या ऐसा वाकई में कुछ हो रहा है वहाँ पर और it is just my imagination, मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ। So इस तरह की चीज़ें हम पूछने की कोशिश करें। It is harmless. It is harmless. Verbal harassment makes target feel uncomfortable and threatened and escalate the situation to physical violence. So that is why we have to stop it. I can't make a difference. For example, जो सामने वाला है, कितना strong है, कितना strong है, या उसके पास कोई sometimes weapon also. Coming on that. 5 Ds जो मैंने पहले बताए थे, वही एक तरीके हैं जिससे बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए हम इंटरवीन कर सकते हैं। इट डजंट मैटर सामने वाला जो हैरेसर है कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कितना नहीं है। तो जब हम तरीकों को यूज करते हैं तो these things are useless. तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है या फिर कितने ज़्यादा है हमको फिर मैटर नहीं करता। ठीक है, आई कांट मेक अ डिफरेंस। ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो कि यार मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ, सिचुएशन चल रही है, मैं क्यों करूँ उसमें, या मैं अकेला क्या करता हूँ, ये फिर से करेगा, जो करने वाला है ये तो करेगा, मैं यहाँ रोक दूँ आगे जाके फिर करेगा। बट व्हाट एक्चुअली एग्जैक्टली हैपेंड कि हमारा जो एक्शन है कहीं ना कहीं उसे डिस्करेज करता है और इट प्रिवेंट द फ्यूचर हैरेसमेंट ऑल्सो। कि जब कोई चीज़ के लिए डिस्करेज हो जाता है तो फ्यूचर में भी वो चीज़ें करना शायद छोड़ देता है। So let's move forward and now let's talk about the ideas of 5 Ds. एक वीडियो देखेंगे, वीडियो में शायद साउंड नहीं आ रहा है बट वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा अपने आप में, एंड आफ्टर द वीडियो वी विल डिस्कस कि व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड इन द वीडियो और हम क्या उस वीडियो में कर सकते हैं उस सिचुएशन। तो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रैक्ट। All you guys see what is happening in the video. That is why we titled it distract. We are trying to distract the situation and also the harasser. कि जब हम इनडायरेक्ट अप्रोच लेने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक्शन लेने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो de-escalate the situation. और इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट में। लाइक वीडियो में हमने देखा कि वहाँ पर ओल्ड लेडी ने अपनी बुक उन दोनों के बीच गिराई एंड जब वो वहाँ बुक उठाने के लिए खड़ी हुई तो वो उनके बीच आकर खड़ी हो गई एंड विच मेक्स अ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द हैरेसर और जिसके साथ हैरेसमेंट हो रहा था, जिससे कि वो सिचुएशन कहीं ना कहीं रुक गई। एंड एक और चीज़ हमने वहाँ पर देखी कि जब हैरेसमेंट उस वुमन के साथ हो रहा था सो वी कैन क्लियरली सी द कितनी अनकंफर्टेबल वो लग रही थी वहाँ पर, एक डर अलग सा उसके चेहरे पर दिख रहा था।
बट जब वहाँ पर इंटरवेन किसी ने करा उसके बाद उसके चेहरे पर एक खुशी, एक जॉय हमने देखा कि हाँ कोई है मेरी हेल्प करने। तो डिस्ट्रैक्ट में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर डिस्ट्रैक्टिंग द सिचुएशन। और डिस्ट्रैक्टिंग का आइडिया हमारा कुछ भी हो सकता है। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं टीटीसी बस में हूँ और सेम सिचुएशन है वहाँ पर, सो व्हाट कैन आई डू, शायद मैं अपनी सीट एक्सचेंज कर सकता हूँ उसके साथ, या फिर जो हैरेसमेंट जिसके साथ हो रहा है, अगर एज ए मैं गर्ल हूँ और जिसके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, एंड आई विल कॉल हर कि कैन यू प्लीज़ यहाँ आप आ सकती हैं, आई वुड लाइक टू, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, कुछ भी हम वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और एज अ बॉय, अगर एज अ बॉय मैं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ टीटीसी बस में, सेम सिचुएशन, सो आई वुड लाइक टू आस्क के जो हैरेसर है, जो हैरेसमेंट कर रहा है, जो डूअर है, उससे कुछ भी मैं पूछ सकता हूँ कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, या फिर आप कुछ मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं, मुझे वहाँ जाना है, कौन सी बस लेनी है। सेम थिंग इज मेट्रो ऑल्सो, कि मेट्रो में भी हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। मेट्रो में बहुत ज़्यादा शांति होती है, सब एयरपोर्ट्स लगाकर अपने अपने धुन में शांत बैठे होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी कैन डू इज, हम कुछ कॉइन्स वहाँ पर फेंक सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हम वहाँ देख रहे हैं तो हम कुछ कॉइन्स वहाँ पर फेंक सकते हैं, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर हो जाए। I just want to ask one question. Yeah. Since you are a trainer, you are dealing with, आपको पता है कि कैसे है. Have you ever intervened? Exactly. Yes, अच्छा. I did. So क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ मैं कि एक बार मी एंड माई कोऑर्डिनेटर, तो मेरे सीनियर हैं, हम मेट्रो में एक बार ट्रैवल कर रहे थे एंड देयर वाज अ सिचुएशन लाइक एक लड़का एक लड़की को थोड़ा परेशान कर रहा था, वो ऑलरेडी फ्रेंड्स थे, सो लड़का उसे हाथ पकड़ के पुश कर रहा था बाहर एंड द गर्ल वाज नहीं, वो उसे प्रिवेंट कर रही थी, उसे रेजिस्ट भी कर रही थी। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट कि जब हमने वो देखा तो पहले मैंने अपने कोऑर्डिनेटर को बताया कि देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हैरेसमेंट इज लुक लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ चल रहा है। सो ही सेड कि थोड़े से उन्होंने फनी वे में मुझसे कहा कि करो, तुम ट्रेनिंग देते हो, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन करो कुछ लोगों से वहाँ पर कुछ। सो व्हाट आई डिड इज कि मैं वहाँ पर जाकर जोर जोर से हंसने लगा। दिस इज व्हाट आई डिड कि मैं वहाँ पर बहुत जोर से हंसा, जिससे कि जो सिचुएशन थी पूरी डिस्ट्रैक्ट हो गई। जो लड़का था वो मेरी तरफ देखने लगा, लड़की भी मेरी तरफ देखने लगी, उतने में गेट खुला और जो लड़की थी वो गेट से बाहर चली और लड़का गेट के अंदर ही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज द ओनली इंसिडेंस जहाँ मैंने डिस्ट्रैक्ट का यूज किया एंड मोस्टली मैं आगे डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट के साथ में ज़्यादा वहाँ पर इंटरवेन करता हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट में वी आर ट्राइंग टू, वी हैव टू बी क्रिएटिव। ठीक है, जब डिस्ट्रैक्ट हम यूज करें तो हमें क्रिएटिव होने की थोड़ा ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकंड इज डेलीगेट। Take help from someone. Yeah. In case if we are not in a position to help, then we can take assistance or we can take help from someone who is in a position of authority. Yes. Exactly. हाँ. तो हम किसी से भी जो पोजीशन इन अथॉरिटी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, क्योंकि पोजीशन ऑफ अथॉरिटी भी आपको वहाँ आसपास कोई नहीं दिखाई दे। ठीक है, मान लिया कोई नहीं है, शायद बस ड्राइवर के पास आप जाएं तो वहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर पाया, बस ड्राइवर बस चलाते हुए छोड़ कर तो नहीं आया। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कंडक्टर में हेल्प, कंडक्टर में हेल्प कर सकता है। और बेसिकली आजकल डीटीसी तो मार्शल्स हैं, लेकिन दिल्ली में है, वो दिल्ली में है। ये देखो सिर्फ दिल्ली में और स्टेट्स की बात करें, इतनी खराब हालत है। आई टेल यू, सॉरी टू इंटरवेन, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज डूइंग माय लॉ, ये इंसिडेंट मैंने स्टार्ट किया 1998 में। Most of you were not born that time. उस टाइम पे I used to travel by bus, as in कि मेरे यूनिवर्सिटी में, I was from पंजाब यूनिवर्सिटी और मैं जिस टाउन से 7 to 8 hours का डिस्टेंस था। तो वीकेंड पे जब भी आना जाना तो it was very very common, और कभी हमें ये होता था कि साथ में ना कोई ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं होना है, कोई बैठ ना जाए आगे। फर्स्ट ईयर में थी, वो चुप रहे, कि ठीक है, थोड़ा टॉलरेट कर लिया, थोड़ा ऐसे हो गए वैसे हो गए, कोई देख रहा है। बट बाय द टाइम आई रीच्ड इन थर्ड ईयर, बाय द टाइम मैं थर्ड ईयर में आ गई, तब क्या हुआ
कि आप पे करेज आ जाता है, आप अपने आप को वैसे भी थर्ड ईयर में जब आप मेरा तो 3 ईयर लॉ था और आप लोग तो 5 ईयर वाले हो, तब तक आप अपने आप को लॉयर समझना शुरू कर देते हो एंड मैंने ऐसे देखना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड स्टेयरिंग अपनी तरफ से डर, तो कुछ बोला तो साथ में मैंने कंडक्टर वाज आल्सो स्टैंडिंग, आप जैसे कह रहे हो ना कि द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, बट सम टाइम पीपल इवन डू नॉट, इफ यू आस्क फॉर हेल्प दे डू नॉट हेल्प, वो हेल्प ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहता मुझे साथ में बैठो, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बस और अपनी कार वार में आया करो, कि कैसे कि अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है बस से हो रही है तो आप अपनी कार में आया करो, तो देन एक धीरे धीरे एक करेज आना, लेकिन आज के और उस टाइम के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में आई टेल यू बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आपकी तो कंडीशनिंग हुई है, आपकी तो सेंसिटाइजेशन हुआ है। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था, हमारी तो फैमिलीज भी कंजर्वेटिव थी, हम कह भी नहीं सकते थे। आजकल तो फिर भी पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, डील करते हैं, पूछते हैं, बट उस टाइम पे नहीं था, आई टेल यू। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कंडक्टर सुनता ही नहीं है बात, वो खड़ा था वहाँ पे जब मैं उसको अपना इंसिडेंट बता रही थी कि देखो समझाओ इसको, बोलो इसको कुछ, तो वो चुप करके वो चला गया। इट ऑल्सो हैपन्स, तो हमें अपने अंदर ही लेके आना है, आप बोलोगे ना दूसरे वाला बहुत डर जाएगा, आई टेल यू। बस हमें करेज लेके आना है अपने अंदर, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई लड़ाई थोड़ी ना करनी है, हमें कोई वेपन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पास एक वर्ड, एक होता है ना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक वो डिक्शनरी के वर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। जब बस सुना दो 2-3 लाइन्स, वो वहीं पे शांत हो जाएगा। Anyone wants to say something? कुछ और ऐड करना है और लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं, आप आगे चलिए। दैट सिचुएशन 3 चीज़ें देखी हमने। पहले में डिस्ट्रैक्ट था, सेकंड वन इज डेलीगेट एंड थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट। तो 3 सेम सिचुएशन में हम 3 तरीकों की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट की जब हम बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट हम क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट एज ए प्रूफ। सम ऑफ यू आर गोइंग टू बी अ लॉयर, सो यू ऑल नो व्हाट्स द क्या अहमियत है एक प्रूफ की। तो एज ए प्रूफ हम उसे डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें। तो समटाइम इट हैपन कि अगर मैं पुलिस के पास जाता हूँ इसे लेकर, तो व्हाट हैपन के दे आस्क फर्स्टली कि क्या प्रूफ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ और फालतू की बातें हैं। एंड रिसेंटली वी हैव अ ट्रेनिंग विद दिल्ली पुलिस आल्सो वेयर दे सेड कि नहीं ये तो फालतू की बात है और कंप्लेंट्स तो आती नहीं है हमारे पास कंप्लेंट ही नहीं आती। They said, and कब हुई थी रोमन ट्रेनिंग को? 11th of November, यानी yesterday ट्रेनिंग ये हुई। वहाँ पर ये निकल कर आया कि they said कि हमारे पास तो कुछ ऐसी कंप्लेंट भी नहीं आती है। So डॉक्यूमेंट में जब हम डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करें एज ए प्रूफ कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट करते हुए कुछ एक चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट वन इज कि एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो जहाँ सिचुएशन चल रही है। सेकंड वन इज लोकल लॉज का हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं होता। थर्ड थिंग इज कि जब हम वीडियो को बना लेंगे और जब वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पर डेट, टाइम या फिर कौन सी जगह या मेट्रो स्टेशन वहाँ पर है वो चीज़ हम उसमें मेंशन करेंगे। एंड फाइनली जब वीडियो हमारा बन जाएगा उसे हम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि मे बी पॉसिबल है आपके लिए सिर्फ वो एक सिचुएशन है, पर जिसके साथ वो हुआ है उसके लिए बहुत बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक चीज़ है। शायद वो उसे दोबारा देख ले तो उसके पास कुछ अलग अलग इम्पैक्ट उसके पड़े, उसे अच्छा ना लगे। तो वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे। एंड थिंग इज दैट कि जब वीडियो बन जाएगा उसके बाद खुद भी पुलिस के पास हम उसे लेकर नहीं जाएंगे। वी वुड आस्क द पर्सन हु वाज हरेस्ड, जो हरेस हुआ था उससे पूछेंगे
कि क्या आप इस वीडियो के साथ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसके पास लेकर चलूँ, मैं चल सकता हूँ, या अगर आप चाहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दिया जाए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वीडियो को हम जिसके साथ हुआ है उसकी रजामंदी के बगैर कहीं भी यूज हम नहीं करेंगे। So this is delay. What we are doing in delay में हम क्या कर रहे हैं, जब सिचुएशन खत्म हो गई है, सपोज कि मेरे पास करेक्ट नहीं है कि मैं डिस्ट्रैक्ट करूँ या फिर डेलीगेट करूँ, डेलीगेट के लिए मुझे कोई नहीं मिल रहा है, या फिर डिस्ट्रैक्ट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ सिचुएशन को, एटलीस्ट इतना मैं कर सकता हूँ अगर डिस्टेंस है। सेकंड वन इज डिले में यूज कर सकता हूँ। जब सिचुएशन खत्म हो जाए हैरेसमेंट की, उसके बाद जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ था उसको जाकर पूछें, आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सो दैट जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल वहाँ पर फील करें और जो इम्पैक्ट्स हैं हैरेसमेंट के वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से। कुछ भी हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, आपके साथ बैठ सकता हूँ थोड़ी देर, एंड उससे सिचुएशन के बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, क्या सिचुएशन वहाँ पर चल रहा हो, ठीक है, वो हम ज़्यादा बात उनसे नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी अगर हैरेसमेंट की सिचुएशन हमने देखी, सो एज ए बॉय अगर किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, सो एज ए बॉय शायद मैं उस लड़की के पास जाऊँ, सो मे बी वो सेम चीज़ फिर से फील करे, शी विल थिंक कि एक और आ गया मुझे हैरेस करने के लिए, अभी तो ये गया था दूसरा पैसा आ गया, सो मे बी ये हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली ये होता भी है, ऐसी चीज़ें होती भी। तो उस सिचुएशन में व्हाट वी डू इज कि हम अगर कोई फीमेल के साथ हुआ है तो हमारा कोई फीमेल फ्रेंड हमारे साथ है या फिर कोई और फीमेल बायस्टैंडर हमें वहाँ दिख रहा है, तो उनसे हम पूछ सकते हैं और उनसे कह सकते हैं देयर वाज अ सिचुएशन लाइक दैट, सो कैन यू प्लीज आस्क हर इफ शी इज ओके और नॉट, ठीक है, तो हम उनसे ऐसे पूछ सकते हैं किसी और से जाने के लिए, ओनली फीमेल, ठीक है, एंड लेट्स मूव टू डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इंटरवेंशन की। इस सिचुएशन में अब से तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिचुएशन की फिजिकल होने के, और इसीलिए ये सबसे लास्ट में हमने पहले 4 डी डिस्कस करे एंड लास्ट में इज डायरेक्ट, जिसमें ज़्यादा चांसेस है फिजिकल वायलेंस के। तो हमें क्या करना है जब भी हम डायरेक्ट का यूज़ करें कि हम बहुत ही क्लियर और फर्म रहें अपने वर्ड्स को लेकर, जो भी हम कहना चाह रहे हैं जो हैरेसर है उसके साथ, कि जो भी वो कर रहा है उसे रोक दे, which is totally inappropriate, उसे रोक दे एंड टोटली रॉन्ग। कुछ ही शब्दों में उससे अपनी बातें कहें, क्या आप उससे कहना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, एंड देन मूव टू द पर्सन हु वाज गेटिंग, जिसके साथ हैरेसमेंट हो रहा था उसकी तरफ हम मुड़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू आस्क हर और हिम कि आर यू ओके, आर यू फाइन, विच वाज डूइंग इन डिले, जो हम डिले में कर रहे थे। सेम चीजें यहाँ पर भी रहेंगी। रिमेंबर, डिले और डायरेक्ट में जब भी हम पर्सन के साथ जो हैरेसमेंट हुआ है जिसके साथ बात कर रहे हैं, हम उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे जो सिचुएशन उनके साथ हुई है। यू विल नॉट बी लाइक के आई वाज सीइंग जो आपके साथ हो रहा था विच इज़ वेरी बैड एंड बहुत बेकार चीज़ है, नहीं होना चाहिए था ऐसा आपके साथ और मैं भी इसे रेजिस्ट करता हूँ, ऐसी बातें हम नहीं करेंगे। She knows कि जो मेरे पास आ रहा है वो देखकर आ रहा है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है, थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना है, कोई और बात करनी है ताकि उनका माइंड काम हो सके, डाइवर्ट द टॉपिक, थोड़ा डाइवर्ट करो टॉपिक को, बात को, ताकि उनका माइंड जो है थोड़ा शांत हो जाए। ज़्यादा तो यही बोलते रहो, नहीं बहुत गलत हो रहा था, मैंने देखा, नहीं बहुत गलत हुआ, मेरे साथ भी हुआ, नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं मैं बिल्कुल नहीं होने देती हूँ ये, नहीं ऐसा ना। So let's move forward. And now I would like to ask कि जो 5 डी हमने डिस्कस किया है वो कि सबको अच्छे से समझ आए होंगे, तो कौन सा एक डी आपको लगता है जब आप सिचुएशन देखेंगे हैरेसमेंट की, कौन सा एक डी आप मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा आपके? डिस्ट्रैक्ट, आई थिंक
डिस्ट्रैक्ट, इसे डिस्ट्रैक्ट वाले हैंड रेज करेंगे एक बार। एंड नाउ डेलीगेट। Depends on the situation. If we are not able to distract, then we will ये तो होता है ना किसी और को, जब दूसरा इंसान ही नहीं कुछ करना चाहता हो, अगर उसे करना हो तो वो खुद कर लेता। आप इतना ज्यादा दूसरे को अप्रोच नहीं करना, आप दूसरा का करते हो। Exactly, और यही मैं सुनना चाहता था कि most of us saying distract। कैसे एकदम से जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैं distract करूँगा? क्योंकि it is depend on the situation। हो सकता है कि मैं distract नहीं यूज करें, delegate भी ना यूज हो, सिर्फ direct का यूज हमें करना पड़े। कहीं पर सिचुएशन शुरुआत में जैसा आया था कि फिजिकली अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम distract का यूज कर सकते हैं, depending on the situation। But still I would say distract is favorite, है ना? Distract हमारा favorite है अगर सिचुएशन की अगर हम बात करें। Quick and easy and simple and it achieves the purpose basically, right? Distract कर दिया, बहुत लोग उसी से discourage होके हट जाते हैं। पर्पस अचीव, ना आपको बाद में रुकना है, ना विक्टिम से बात करनी है, ना कुछ करना है, पर्पस अचीव हो गया, वो भी मूव ऑन करके आप भी मूव ऑन करेंगे। तो इट्स द क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड उसमें आप ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही गन ट्रेन हो जाती है कि आपने ये किया, दूसरा जो हरासर है वो आपके पीछे पड़ जाए। तो डिस्ट्रैक्शन इज like I said, it achieves the purpose very simply. So how can we be a good bystander? There are three things we have to keep in our mind. जब भी हम इंटरवेन करें, फर्स्ट थिंग इज कि नोटिस को सिनेरियो करें कि क्या सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है। एसेस योर सेफ्टी फर्स्ट। अगेन अपनी सेफ्टी को हम पहले एसेस करेंगे। इफ यू आर थिंक अगर आपको लगता है मैं वहाँ पर इंटरवेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सेफ्टी खतरे में हो जाएगी, डोंट डू इट, आप मत करिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर इंटरवेन करने जाए और आपके साथ हैरेसमेंट होने लगे। यू वांट डू इट, हम ऐसा नहीं करेंगे। Second thing is we will notice what keeps you from acting when you see harassment, कि कौन सी चीज आपको एक्ट करने से रोक रही है, प्रिवेंट कर रही है। एंड देन we will decide कि कौन सा एक तरीका हमारे लिए हो सकता है harassment को रोकने का। एक और चीज यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा कि मे भी पॉसिबल है, तो 5 Ds की हमने यहाँ पर बात की है कि 5 Ds का एडवोकेटिंग कर रहा हूँ, तो मे भी पॉसिबल है कि कहीं पर 5 Ds में कोई भी इस्तेमाल ना हो, किसी का भी यूज ना हो। So feel comfortable और एक कॉन्फिडेंट फील करें। अपार्ट फ्रॉम 5 Ds के अलावा भी अगर कोई और तरीका अगर आपके दिमाग में आ रहा है रोकने का हैरेसमेंट को, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट इज आवर अल्टीमेट टारगेट इज कि हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना है। इट इज नॉट अबाउट 5 Ds। 5 Ds के बारे में नहीं है कि 5 Ds का ही यूज हम कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारे हमारे तरीके हो सकते हैं। When street harassment happens to you, how do you take care of yourself in an environment? अब तक हमने बात करी थी कि जब दूसरों के साथ harassment हो तब हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे साथ harassment हो तब हम क्या करें। क्योंकि बेसिकली जब चीजें हमारे साथ होती हैं तो वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है हमारी। दूसरी की सिचुएशन हम बहुत ज्यादा एडवाइस उन्हें दे देते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। पर जब सिचुएशन हमारे साथ होती है तब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने आप में, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं अपने आप में, मैं क्या करूँ। ठीक है, दूसरों को एडवाइस देना बहुत ईजी है। स्ट्रीट हैरेसमेंट इज नेवर योर फॉल्ट। जैसे शुरुआत में मैंने बात करी थी कि अलग अलग स्टेटमेंट निकल कर आते हैं जब हैरेसमेंट की सिचुएशन होती है। फैमिली में हम बात करते हैं, फैमिली हमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है और ये होता भी है ज़्यादा। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा है कि जिसके साथ जो चीज़ हो रही है हम उसे ही ब्लेम करते हैं उस चीज़ के। हम ये नहीं कहते कि किसकी गलती है किसकी नहीं। एंड विच इज ऑल्सो थिंग कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम एक सेक्सुअल हैरेसमेंट को, स्ट्रीट हैरेसमेंट को परफेक्ट रिस्पॉन्स दें। ये तो हैरेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें हैरेस करे ही ना, वो ऐसी चीज़ें करे ही ना जहाँ हमें एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हैरेसमेंट को रोकें, क्योंकि हम तो कुछ गलत करेंगे। मेरी गलती नहीं है अगर मेरे साथ हैरेसमेंट हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, बट जो हैरेसर है उसकी गलती है। एंड व्हाट वी एग्जैक्टली डू इज कि कभी कभार तो ऐसी चीज़ आती है कि अगर 90s की फिल्मों की अगर हम बात करें और इंडिया में इंडियन सोसाइटी में जो एक पूरा बॉलीवुड है उसका सोसाइटी पर बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट है।
बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है बॉलीवुड का, बॉलीवुड फिल्मों का बहुत बड़ा सोसाइटी पर इम्पैक्ट है। और 90s की फिल्मों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम विस्लिंग, स्टॉकिंग, कमेंट्स पास करना किसी को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं 90s की फिल्मों में। गाने 80s और 90s में इट वाज वेरी कॉमन, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कॉमन था वो। और हमने सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये तो है भाई, मर्द है, लड़की की नाम है, हाँ है, Exactly. जब तक हाँ नहीं बोल जाए बोल देती पीछे पड़े रहो। और अलग अलग गाने स्टॉकिंग के भी कि लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता, विच इज स्टॉकिंग। तुम स्टॉक कर रहे हो किसी को, सीधा बोल रहे तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। यस, which is also impact बॉलीवुड का एक हाँ Most of the films are made on this purpose only. एग्जैक्टली इसी पर्पस के लिए बनाई भी गई है। और बॉलीवुड का इम्पैक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ सोसाइटी पर है, Punjabi industry also works on this scenario. सेम कि एक मर्द वाली बात, बॉडी होना, मूछे होना, शरीर पर बाल होना, which is indicating कि आप मर्द हो। So this is what happened. बॉलीवुड का नाम आते हैं आप इससे हो जाते हैं ना। So we have 3 strategies to respond harassment. Harassment के लिए 3 strategies हैं हमारे पास। पहला है trust your instinct, reclaim your space, practice resilience। तो ये 3 है। First one is trust your instinct, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम अपने आप पर भरोसा रखें। Listen to what your gut is telling you. There is no right or perfect response to harassment. However, study shows that having some kind of response, either in the moment or later, can reduce the trauma associated with the harassment. कि अगर आपके साथ कोई harassment हुआ, आपने immediately जब आपके साथ हो रहा तब कोई एक्शन लिया, या फिर harassment जब आपके साथ हो गया, आप उस सिचुएशन पर नहीं कुछ कर पाए, बाद में आपने किया, स्टडी शोज कि जब आपने बाद में भी कुछ एक्शन लिया ना, तभी भी आपका जो ट्रॉमा एसोसिएटेड था हैरेसमेंट से, वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ। इफ यू डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड, डू इट फॉर यू। अगर आपने डिसाइड करा है हैरेसमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो करिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ये मत सोचिए कि मैंने उसकी हेल्प करी, यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, सो दैट यू मे फील कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने आज किसी को हेल्प करा है। और होता भी है ऐसा कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक अलग सा जॉय हमारे मन में, सेटिस्फैक्शन एक आ जाता है, एंड वी फील कि वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। Part of I guess it's a part of a healthy society. Exactly. And what we are talking in society के we are talking about the anti-social element. Toxic element. Exactly. वही मैं अपने लिए जो मेरा वर्ड है मैं यूज करता हूँ उसके लिए, जो हैरेसमेंट करते हैं या इस तरीके की चीजें करते हैं, मैं उनके लिए यही वर्ड यूज करता हूँ, एंटी-सोशल एलिमेंट दे आप, वो कोई भी हो सकता है। Reclaim your space. जब हमारे साथ हो रहा है तो we will try to reclaim our space. Decide if you want to respond and how. कैसे हम उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? First thing is हम डायरेक्टली उन्हें बोल सकते हैं क्या वो हमारे साथ कर रहे हैं, क्या हम उनसे चाहते हैं। सेकंड वन इज हम किसी बायस्टैंडर को एंगेज कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर कोई और भी फ्रेंड है हमारा उसे भी हम एंगेज कर सकते हैं। थर्ड वन इज हम सिचुएशन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं while pretending that we are just using our phone. So there are 3 things to reclaim your space. Next, practice resilience, which is important. There is a strength in recognizing that street harassment hurt. Don't show it down and pretend it didn't happen to you. Mostly ये होता है कि जब हमारे साथ ये चीजें होती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये लोग तो करेंगे ही, लेट इट बी, क्या ही इनसे बोला है ना, छोड़ देते हैं, लेने जाते हैं, और हम उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं कि these things are the part of our life, कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, ये हमारे साथ होगा। कहीं ना कहीं हम उसे एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देते हैं, एंड which is also comes to our dignity। तो हमारी डिग्निटी पर भी एक सवाल, हमारी रिस्पेक्ट पर भी एक सवाल को वहाँ खड़ा हो जाता है। एंड एज आई अर्लियर मेंशन कि NCRB ने कहा है कि 65% केसेस में, रेप केसेस में ऑलरेडी विक्टिम को फॉलो किया जाता था, उसे हैरेस किया जाता था, अलग-अलग चीजों को लेकर परेशान किया जाता था। This is important, practice resilience. So what we are doing in practice resilience, we will try to
share our things with family or a friend or anywhere else. कि जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं तो थोड़ा सा बर्डन और रिलैक्स भी हम थोड़ा सा फील करते हैं. I just want to add one thing over here. इस आप जेंडर स्टडीज में पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट स्टूडेंट्स में पढ़ेंगे, कभी भी अगर इस टॉपिक से आपका इंटरेक्शन होता है, शेयरिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कभी भी आपको लगे ऐसा हुआ है, हमारी सबकी इंस्टिंक्ट होती है पहली बार रिकॉग्नाइज ना करना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ही गलत सोच रही हूँ, ये ऐसा नहीं कर रहा होगा वो इंसान. फिर बाद में जब आपको रियलाइज़ होता है यार मैंने तो उसको रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं, मेरी गलती है, मैंने उसे रोका नहीं. नॉट जस्ट कि मैं ऐसे ड्रेस थी या मैं उस तरीके से बिहेव कर रही थी, मैंने उसे रोका नहीं. आई एम स्टिल फेसिंग दिस. अब फ्रेंड्स हस्बैंड इज हिटिंग ऑन मी एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे मना करूँ. मैं उसकी वाइफ को बता दूँ वो मेरी फ्रेंड है, उसको कैसा लगेगा. मैं उसको करूँ यार ज़बरदस्ती बात बढ़ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये हमेशा हम अपने ऊपर गिल्ट लेते हैं और दूसरों को बताने में भी कि यार ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है यार, पता नहीं हमें तो झेलना ही पड़ता है ये सब कुछ. लेकिन आप जितना भी हमेशा कोई भी ऐसे ट्रबल्स आपको होते हैं, जितना आप उन बातों के बारे में बात करते हो, एक आपको पीस मिलती है, दूसरा आपको सपोर्ट मिलता है, तीसरा उस जिससे भी आप बात कर रहे हो उस इंसान को भी एक सपोर्ट मिलता है फ्यूचर के लिए. उनके साथ शायद ऐसा कुछ ना हुआ हो, बट व्हेन दे लिसन टू यू तो उनको ऐसा लगता है कभी फ्यूचर में हो तो वो साइंस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे नो दैट दे आर नॉट अलोन, यू नो यू आर नॉट अलोन. हम ये कह सकते हैं, हम कहते हैं कि हाँ सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, बट हमारे साथ खुद के साथ होता है ना, हम इतना इजीली उससे डील नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, एक गिल्ट लेना कि यार ये मेरी गलती है, या फिर मेरे पास कोई सब, मैं किसको बताऊँ यार, मम्मी डैडी को नहीं बता सकती, क्या बताऊँ, क्या बात करूँ इस बारे में, क्या इस बारे में बात करने के लिए, या फिर मेरी गलती थी मैंने उसे बोला क्यों नहीं. इन सब चीज़ों को हटा के शेयर, टॉक अबाउट दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल. आपके बात करने से चीज़ें डील होती हैं, ना कि सिर्फ उनको शांति मिलती है, वो आप उसको अपने माइंड में भी उनको डील करते हो. एंड यू मेक अ पैटर्न फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, फॉर अदर्स एज वेल. शेयरिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. Like here it also says that map your story on Golaback, or there might be other platforms also. Do it, it helps. Discussions help. Talking about it helps. Thank you very much, ma'am, for adding these points. So I'm really One more thing, कि कोई आपको नहीं बताएगा कि आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है. ये आप खुद से फील करोगे, और यही एक डेफिनेशन है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, कि जो भी बिहेवियर, जो भी पर्सन जिस भी एक्शन से आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, ठीक है, आप उसके टच से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अनसेफ फील कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो गलत है. सामने से नहीं बोलेगा कि मैं आपको टच करने जा रहा हूँ या मैं आपको घूर रहा हूँ. नो, जो भी बिहेवियर, जो भी चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल और अनसेफ फील करवा रही है, यानी कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है. और इसीलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट की एक डेफिनेशन है कि ये अनवांटेड और अनवेलकम होता है. क्या कोई वेलकम करता है इसको? नो. एंड देयर इज आल्सो थिंग कि जब एक बात और आती है कि फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लर्टिंग एंड हैरेसमेंट. डिफरेंस क्या है फ्लर्टिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट में? वहाँ पर भी एक पॉइंट फिर रेज हो जाता है. सो जब फ्लर्ट हम करते हैं, इट इज वेलकम बाय द पर्सन. वो पर्सन से वेलकम करता है फ्लर्टिंग को, पर हैरेसमेंट को वेलकम नहीं करता. इट मेक्स मी अनकंफर्टेबल. जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है वो हैरेसमेंट है. नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस सेशन. एक वीडियो हम देखेंगे एंड देन वीडियो में हम नोटिस करेंगे कि कौन से 5 Ds का वहाँ पर वीडियो में यूज किया गया. ठीक है, एंड देन वी हैव अ सिनेरियो.
आप सभी ने लोग हंसते रहते वीडियो को देखकर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सर डिस्ट्रैक्ट डायरेक्ट था डॉक्यूमेंट वो एक रियल वीडियो था, कोई शूट नहीं किया गया था उसे, नॉट के मैक्रो का एक रियल वीडियो था। तो देयर वाज डिस्ट्रैक्ट था जहाँ वो पोटैटो चिप गाय खाते हुए बीच में आया, जिससे कि फिजिकल वायलेंस होता। डॉक्यूमेंट हो ही रहा था क्योंकि रियल वीडियो था। डायरेक्ट में उन्होंने एक जो लेडी बाद में आई जो बात कर रही थी ब्लैक वुमेन, उन्होंने वहां पर उससे डायरेक्टली बात करी। ऑडियो नहीं था, अगर ऑडियो होता तो और ज्यादा अच्छे से समझ। 3 डी थे, डिस्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट और डायरेक्ट। एंड लेट्स मूव टू द सिनेरियो। सिनेरियो में पढ़ूंगा या फिर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। पहले में हम इमेजिन करेंगे कि हमारे साथ वो चीज हो रही है, एंड सेकंड में हम इमेजिन करेंगे कि एज ए बायस्टैंडर हम वहां पर क्या कर सकते हैं। Alright, you are at a restaurant or a bar having a quiet food or drink with some friends. A woman is sitting alone at the restaurant and another customer started to give her a hard time. He reaches over and touches her and occasionally knocks over her body. The woman looks uncomfortable and moves further away, but the other customer continues with his comment. So this is the scenario of a restaurant or a bar का scene है, जहाँ पर एक woman को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। BLLB, पता है मैं कौन हूँ? अभी बाहर निकाल कर दो, तुम्हारे अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। The 3 of you have been talking throughout. The 3 of you have been talking throughout. चलिए, let's continue. Please, we'll take not more than 5 minutes, please. Just 2 minutes more. So there is the first question. What would you do if you experience this in a restaurant? अगर रेस्टोरेंट में आप सेम सिचुएशन को फील करते हैं, तब आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट वन इज मूव एंड सिट डाउन टू next to a large group of people. Second one is tell him I am not interested, I need some space. And third one is discreetly take his photo and email it to the bar owner. Answer 4, share and map your story with anyone, follow back or with your friend or family. What would you do? अगर ये आप रेस्टोरेंट में फेस करते हैं, किसी के साथ हो रहा है, आप ये फेस कर रहे हैं, सिनेरियो है, you have to imagine, yes. So my first step towards the first answer, and then after going to the home or the safest place, then I will share my story in the collaback.organization. It is not about this collaback पे ही आप शेयर करें। Sir, we are not supposed to tell that in a large group of people how many bystanders are there. We are not sure about those crowd. As like I said कि मैं वहाँ पर खाना खा रहा हूँ, जब पहले मैंने पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर कहा कि मैं वहाँ खाना खा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि एक वुमेन को एक आदमी परेशान कर रहा है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। तो बेसिकली वहाँ पर एक लार्ज ग्रुप बैठा है जिसमें मैं भी हूँ। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि वो उसे परेशान कर रहा है एंड नाउ यू हैव टू इमेजिन कि वो वुमेन आप हैं, आपके साथ सेम चीज हो रही है। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या एक्शन वहां पर रहेगा आपका अगर आपके साथ ही रेस्टोरेंट में होता है? कोई आपको परेशान कर रहा है, बुली कर रहा है, कमेंट पास कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश कर रहा है बार-बार। So what would you do? आप क्या करेंगे? Sir, a girl can call on women helpline number. No, either we can move and sit to another crowd. लार्ज ग्रुप के साथ हम बैठे हैं, बट ऐसे और चीज में हम वुमेन हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, बट मे भी उन्हें टाइम लग जाएगा। Yes sir, it is time delay. और हमें इमीडिएट एक्शन वहाँ पर लेना है। We can say to the bar owner. It is also there कि हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। Security guards.
सिक्योरिटी गार्ड्स के पास हम जा सकते हैं. सो मे हैव, हमारे पास कुछ भी वहाँ पर हम तरीका वहाँ पर रोक सकते हैं. एंड लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आप सेम चीज को विटनेस करते हैं एज ए बायस्टैंडर, तब आप उसमें क्या करेंगे? Distract, physically stand between them and order a drink or two. Answer 2, delegate plus document. Ask your friend to document the situation while you get help from the bartender. Answer 3, delay when she gets up to leave. Walk with her towards the door. Ask if she is okay. Tell him, I think it is time to find a new seat, and direct him towards an empty chair. Something else. अगर आप विटनेस कर रहे हैं उस सेम सिचुएशन को, सो व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए? Directly tell her to sit in a new place or a new seat. So I think distract will be a perfect option for this. Physically stand between them to order a drink. Okay. I think delegate plus document. Delegate plus document. Okay. So because we are not sure about the person, as a bar has alcoholic situation is also there. We have just removed the word of bar. Just हम रेस्टोरेंट के साथ जा रहे हैं. Okay. हम रेस्टोरेंट इसलिए मैंने बार और रेस्टोरेंट दोनों का. Anyone else? किसी और को कुछ भी यहाँ पर लगता है कि आप कर सकते हैं ऐसे बायस्टैंडर रोकने के लिए? कुछ भी अगर कुछ और भी आ रहा है तो वो भी बता सकते हैं. So let's finish this and move to the last one. Last one. So क्या आप लोग रेडी हैं अगर आप हैरेसमेंट को देखते हैं डील करने के लिए, आपके साथ हो या किसी और के साथ? एटलीस्ट वन थिंग वी कैन डू टू हेल्प, कि जब भी हम हैरेसमेंट को देखें कुछ ना कुछ वहाँ पर कर सकें. डिले का हम यूज कर सकें वहाँ पर, डिस्ट्रैक्ट कर सकें. एट द मोमेंट हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद सिचुएशन खत्म हो जाए, तब हम जाकर बात करने की कोशिश करें. बिकॉज कहीं ना कहीं मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि इंडियन सोसाइटी में इन सब चीज़ों को लेकर अलग ही थिंकिंग है. बहुत ज़्यादा एक जिसके साथ हुआ है उसी को ब्लेम करना, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं. So are you guys all ready? And do you think you will do or intervene if you see a situation of harassment? Yes or no? Yes. Okay, thank you very much for all. Thank you, ma'am, and thank you so for such an insightful. I would like to welcome our director, sir, Professor Dr. Ravi Kumar Gupta and Sumedha Datta ma'am. Please join us. Thank you, Salman sir and Roma ma'am, for such an insightful and knowledgeable session today. We indeed learned a lot of things, and we will surely be a change in this society. Thank you so much. Now, I would like to invite Professor Dr. Ravi Kumar Gupta sir to present a memento for today's trainer, Mr. Salman. Thank you, Salman ji. आप भी इधर आ जाइए सेंटर. Sorry. आ जाओ, सब आ जाओ. आओ, आ जाओ. Please give a huge round of applause. Now, I would like to invite Dr. Sumedha Datta ma'am, President Maths, to present a memento to Miss Roma. Yeah. Can we have a huge round of applause? Now, I would like to invite Miss
Gupta to present her valuable remarks on today's session. Welcome, ma'am, with applause. Each of us face street harassment or harassment. Street is a common parlance word that we're using. Not just the streets, but also at any kind of public place where we go. We may feel, we may experience sexual harassment. I know that this can be a trigger for many people. And if you have felt triggered and you have held yourself during this session with peace and calm, then I applaud you. And there were so many of you took active participation in the discussion. Some out of interest, and there was few who did not speak out of, maybe you felt that you did not have anything to contribute, or you were taking it in, or maybe you were shy. I encourage you to speak about this more, if not with us. If you did not find this a safe space, then with anybody else that you may like. But if you see sexual harassment happening anywhere, then you must speak about it, you must talk about it, you must process it. It is very important. So Mr. Salman showed us a very nice presentation, and he told us about the 5 Ds. He told us about, what it feels like when sexual harassment is faced by us, and when we watch as a bystander sexual harassment being done on somebody else. And like I said, we've been bystanders also, we've been the one on the receiving end as well. And the 5 Ds that he talked about were very powerful. In one of the slides he mentioned it as superpower. So yeah, they are very powerful superpowers that we can use and dispel this chain of sexual harassment. And like he said, if you once discourage a person, it acts as a deterrent, as a discouragement for him for later on in life as well. वो सिर्फ उस एक इंसिडेंट के लिए नहीं है, it is for future also. We saw videos, small clips that he showed us, how people were experiencing harassment, how other people, distracted, diverted, delegated, delayed, documented, and even directly approached the harasser, and they were able to dispel that, the intensity of that moment, and they were able to save the person who was getting harassed. And it is a fact that, like he said, 79% of the people who are experiencing, as was in slide, 79% of women or victims who are experiencing sexual harassment at any of the places, they are hoping that somebody would come and help them. It's a natural instinct that we don't feel as powerful, and we really wish that somebody would come and help us. And we can be that change. We certainly can be that change, and we should do it. कुछ भी छोटा सा करके अगर हम उस मोमेंट की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए. हम सभी को करना चाहिए. हम बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इसमें. जैसे मैंने कहा, एक पर्सन को आप एक बार डिस्करेज नहीं करते हो, आगे के लिए भी डिस्करेज करते हो. So we must take steps. There were very good video clips and discussions that happened today. I hope you all have soaked it in. आप यंग हैं, आपको ऐसा नहीं है कि यार मेरे को ना ऑफिस पहुंचना है, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ सकता. अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, देखते हो किसी लड़की को हरास किया जा रहा है, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, आप डिले कर सकते हो, आप रुककर बात कर सकते हो, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. हम सबको, we all felt distraction was the best way, right? So yes, why not? Adopt this approach, and you have the superpower. Use it and be the change that you want to see in the society. Thank you. Thank you, ma'am, for motivating all of us today. Now I would like to invite Dr. Shweta, faculty convener, to present her motivating remarks. I will take 2 minutes, dear students. I will take last 2 minutes. I hope you enjoyed the session. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Very good. Thank you very much for your patient hearing. And dear student, as most of you are from the law background, I am a law student. I call myself as a law student. Gender discrimination exists in our society. It is a huge issue. It's a very big issue, gender discrimination. In spite of,
laws are in place, our constitution talks about gender equality. But still discrimination exists in various forms in our society. And there are series of issues because of the gender discrimination like sexual abuse, sexual harassment. So with this, because the object of the Gender Sensitization and Equality Initiative Club is to sensitize our student, to sensitize the society to various issues. How can we reduce gender discrimination in our society? So this is a step in the direction. So this is a training program is in a direction. So how can we remove this? Because you know, because since most of you are in the first year, so we have a law basically which talks about sexual harassment at the workplace. But there is no law which talks about the public harassment, you know. So this can be removed or this can be reduced from the society by organizing this program like Nukkad Natak, training sessions and outreach program. So with this note, I thank you very much. I extend my gratitude first of all to our chairman sir, Dr. Nandkishore Garg. He is a driving force behind it and provide an inspiration to all of us. Then I thanks to our director, Professor Dr. Ravi Kumar Gupta, who actually provide constant support in every endeavor, whichever the initiative is taken by our club. And my thanks goes to my, gender champions, my colleagues who are behind me like Divisha, Miss Nirati, my colleague Dr. Sumedha Datta, Sarita Garg ma'am who was present in the inaugural session, and to my young gender champions, Miss Dipali, Miss Janvi who is not present, her classes are going on, and all Sambhav who helped me in preparing beautiful poster, and there is one more student, I forgot his name, Bhavya. Thank you very much for the patient hearing. Now wait for one group photograph with the director sir. Please come.